یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق بل اور ٹیلی کمیونیکیشن بل 2023 کو پارلیمنٹ کی منظوری حاصل۔ جموں کشمیر ہم جہت ترقی میں تیزی کے مشن پر گامزن ایل جی منوج سنہا۔ جموں میں JNK فوڈ پروسیسنگ اور ویلنس کانکلیو کا کیا افتتاح۔ سال 2023 کے لیے ساہتیہ اکیڈمی نے ایوارڈز کا کیا اعلان۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے 2 ادیب شامل اور وادی کشمیر میں 40 دن پر محیط چلے کلان کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں کی تقرری سروس اور عہدے کی شرائط سے متعلق بل 2023 منظور کر لیا ہے۔ لوک سبھا نے اس بل کو آج پاس کیا، جبکہ راجیہ سبھا اسے اس سے پہلے منظور کر چکی ہے۔ یہ بل 1991 کے الیکشن کمیشن ایکٹ کی جگہ لے گا۔ اس بل میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری تنخواہ اور برطرفی کا انتظام کیا گیا ہے۔ بل کے دفعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری ایک سلیکشن کمیٹی کی سفارش پر صدر جمہوریہ کی طرف سے کی جائے گی۔ اس سلیکشن کمیٹی میں وزیر اعظم، ایک کابینی وزیر اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر یا حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر شامل ہوں گے۔ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے کہا کہ یہ بل چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق لایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تنخواہ سپریم کورٹ کے ججوں کے برابر ہوگی۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر کوئی بھی حکم پاس کریں گے، اسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دریاسنا پارلیمنٹ نے آج راجیہ سبھا کی منظوری کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن بل 2023 کو بھی ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا۔ یہ بل لوک سبھا سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ اسے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر، سروسز اور اس کے نیٹ ورک میں تبدیلی اور اصلاح کے لیے لایا گیا ہے۔ اس بل میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی ترقی، توسیع اور آپریشن سے متعلق قانون میں ترمیم اور استحکام کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بل انڈین ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کو تبدیل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے الیکٹرانکس اور IT کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس بل کا مقصد ٹیلی کام سیکٹر میں ایک مثالی تبدیلی لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل صارف کے تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے جعلسازی کے ذریعے سم کارڈوں کے اجرا کو روکا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں 3 سال قید سے لے کر 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خارجی امور میں بھارت کا سب سے اہم رہنما اصول اس کا قومی مفاد ہے۔ برطانیہ میں مقیم فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، یہ نقطہ نظر بھارت کو مختلف ممالک کے ساتھ اس انداز میں مشغول ہونے کے قابل بناتا ہے جو باہمی مفادات کا احترام کرے اور عصری جغرافیائی سیاست کی پیچیدگیوں کو تسلیم کرے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کے لیے عملی نقطہ نظر کی وکالت کی۔ وزیر اعظم نے اسے قومی مفادات سے ہم آہنگ عملی مصروفیت پر مرکوز مکس اینڈ میچ ڈپلومیسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، دنیا ایک دوسرے سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر منحصر بھی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت امریکہ تعلقات اب مصروفیت میں وسیع تر، افہام و تفہیم میں گہرے اور دوستی میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی شراکت داری 21ویں صدی میں دنیا کو بہتر بنائے گی۔ اسرائیل حماس جنگ پر انہوں نے 2 ریاستی حل اور غزہ کو انسانی امداد پہنچانے کے بارے میں بھارت کے موقف کا خاکہ پیش کیا۔ نریندر مودی نے خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انٹرویو میں عالمی سطح پر بھارت کے فعال کردار پر بھی بات کی گئی، بشمول وائس آف دی گلوبل ساؤتھ سمٹ کی میزبانی اور ستمبر میں G20 کے مستقل رکن کے طور پر افریقی یونین کے داخلے کی کامیابی کے ساتھ وکالت کرنا۔ اقتدار میں مسلسل تیسری مدت کے لیے واپسی پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ ان کے ہم وطنوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ملک ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کو جلد از جلد پنکھ لگ جائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں جموں کشمیر فوڈ پروسیسنگ اینڈ ویلنس کانکلیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر سیکاپ اور اپولو اسپتال نے خطے میں اپولو اسپتال کے قیام کے لیے لینڈ ڈیڈ کا تبادلہ کیا۔
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जे.एंड.के ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्क्लेव के दौरान सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मेहमान नवाजी, फलाह बहबूद और फूड प्रोसेसिंग के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सन्नत के रहनुमाओं, पॉलिसी साज़ों और स्टेक होल्डर्स का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आज अपोलो अस्पताल के साथ अराजी का तबादला सेहत के शोबे के सबसे बड़े इदारों में से एक के लिए यूनियन टेरिटरी में ज़मीनी काम का बाकायदा आगाज़ करने की राह हमवार करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सेहत की देखभाल के निज़ाम को फ़रोग़ देगा और रोज़गार, खुद रोज़गार और कारोबार के मौक़े में इजाफ़ा करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सनती तरक्की को आसान बनाने और जम्मू कश्मीर को सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले और सबसे ज़्यादा तरजीही सरमायाकारी की मंजिल में तब्दील करने के लिए इंतज़ामी के कलीदी इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमजहत तरक्की को तेज़ करने के मिशन पर है, जो दिलकश घास के मैदान, सब्ज़ार ज़मीन, पुरसकून झीलें, सब्ज़ पहाड़, साफ़ सुथरा माहौल और अबदी मनाजिर, हर किस्म के मुसाफिरों के लिए उम्दा मंजिलें और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2 रोज़ा कॉन्क्लेव मुख्तलिफ शोबों में जम्मू कश्मीर की ताकत और सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए यूटी इंतज़ाम के अज़म का सबूत है। कॉन्क्लेव में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुज़श्ता चंद सालों में सयाहत के शोबे में रिकॉर्ड की गई बेमिसाल तरक्की का भी खाका पेश किया, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर कारोबार करने में आसानी में नंबर 1 बनने के लिए पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं सनत के रहनुमाओं को जम्मू कश्मीर के यूटी में सरमायाकारी करने और जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफ़र में हिस्सा डालने की दावत देता हूँ। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताजरों और कारोबारी तंजीमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। पूरे जम्मू कश्मीर में मुल्क गिर मुहिम विकसित भारत संकल्प यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सांबा के महलशाह पंचायत में संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एलजी ने इस मौके पर घगवाल में 50 बिस्तरों वाले आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जो लोगों को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी मुश्तरका कोशिशों ने देही इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात, उम्दा सेहत खदमात, गाँवों में सफाई सुथराई और बेहतर सड़क और मवासलाती राब्ते को यकीनी बनाया है, ताकि देही और शहरी इलाकों में खलीज को पुर किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की हर एक फ्लैगशिप स्कीम से मुकम्मल फ़ायदा उठाने और विकसित भारत के लिए नई राहें तय करने के लिए मुश्तरका कोशिशों में आम आदमी पेश हैं। पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा समेत कई दीगर ज़िलों की पंचायतों में आज भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं, जिस दौरान लोगों को मरकज़ी सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। रवा माह के शुरू में चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालने के बाद अटल डल्लू को आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर पहुंचने पर सैकड़ों मुलाजमीन ने उनका इस्तकबाल किया। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीट का राउंड लगाया और वहां मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर अटल डल्लू ने मुतअद्दिद वफूद की शिकायत को भी सुना और उनके फौरी अजाले के लिए मौके पर ही हिदायत दी। साहित्य अकेडमी ने साल 2023 के लिए 24 ज़बानों में सालाना अवार्ड्स का ऐलान किया है। इस साल शायरी की 9 किताबों, 6 नावलों, 5 मुख्तसर कहानियों के मजमू, 3 मज़ामीन और अदब से मुतल्लिक एक मुताले को साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए गए हैं। शायरी मजमू के लिए जिन शायरों को एजाज़ से नवाजा गया है, उनमें कश्मीरी ज़बान के मंशूर बानेहाली को उनके शायरी मजमूए यथ वाव हाले चोंक को ज़ाले और डोगरी ज़बान के लिए विजय वर्मा को शायरी गज़ल 2 सदियाँ एक शेर शामिल हैं। ये अवार्ड अगले साल मार्च में एक तकरीब पर दिए जाएंगे। ये अवार्ड तांबे के एक यादगारी मोमेंटो, एक शाल और 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। विजय वर्मा ने साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए चुने जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। शोबे खबर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका शायरी मजमुआ 721 शायरों पर मुश्तमिल है, जिस पर 2020 में काम किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत और कोशिश रंग लाई है। ये मेरी एक 2020 में गजल संग्रह क्या है, एक सिंगल लॉन्गेस्ट गजल थी, 721 शेरों की एक ही गजल है। 2 सदियां एक कसीर इसका नाम है और ये लॉन्गेस्ट एवर मेरे ख्याल में भारतीय भाषाओं में लॉन्गेस्ट गजल है अभी तक, क्योंकि मराठी का 142 शेरों की एक रेफरेंस मिलता है कहीं। आई एम वेरी हैप्पी डोगरी को इस चीज के लिए
चुना गया और मेरे को ये इनाम से जो नवाजा जा रहा है। अपनी अपनी भाषा में जो पाठक हैं या नई पीढ़ी है उसका यही फर्ज है कि वो पढ़े। शायरी को पढ़ना सुनना और अच्छी बात जो है वो हर भाषा में होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विजय वर्मा और मंशूर बानिहाली को साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि इन मुमताज़ अदबी शख्सियात के अदबी कारनामे आने वाली नस्लों को तरगीब देते रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑल J&K क्रिश्चियन सभा की तरफ से जम्मू में मुनक्कद की गई एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि क्रिसमस हमें खिदमत खल्क, दरगुजर और अमन का पैगाम देता है। उन्होंने लोगों से ताकीद की है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा रहें। पूरी वादी में कल उर्स ख़तलान अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाए मुअल्ला श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहाँ वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अक़ीदतमंदों ने ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद व अज़कार की मजालिस में शिरकत की। कश्मीर वादी शदीद सर्दी की गिरफ्त में है और खुश्क मौसम के चलते रात का दर्ज हरारत लगातार नुक्ता अंजमात से नीचे चल रहा है। आज 21 दिसंबर है और ये मौसम सरमा के सबसे सर्द तरीन हिस्से जुलाई कलान का आगाज़ है। जुलाई कलान की बाज़ाब्ता आमद के साथ ही पहले से ही मनफी में चल रहे दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट का एहतिमाल है, क्योंकि रात के दौरान मतला साफ़ रहने का मतलब ठंड में मज़ीद इजाफा है। हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। यूं तो चिलई कलान का नाम सुनते ही इंसान का जिस्म जान यक बस्ता हो जाता है, जिसके चलते आबी ज़खायर मुंजमद होते हैं और पानी की सप्लाई लाइनें जम जाती हैं। चिलई कलान का पहरा 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहेगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आजकल के चिलई कलाम में वो दमखम नहीं जो किसी जमाने में हुआ करता था। आमतौर पर चिलई कलान में गुलिस्तान बर्फिस्तान की शक्ल इख्तियार करते थे और लोग हफ्तों तक अपने घरों में महसूर होकर किस्से कहानियां सुनाकर लुत्फ अंदोज होते थे। बच्चों का बेहतरीन मशगला शिन जंग हुआ करता था। गरमाइश के लिए लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिवायती कांगड़ी हुआ करती थी। इसके बरक्स सर्दी का तोड़ करने के लिए जदीद तरीन सहूलियात के साथ आज के चिलई कलां में बर्फ शाज़ नादिर ही देखने को मिलती है। शहनशाही ज़मिस्तान के तेवरों में इस तरह का तगय्युर आबो हवा की तब्दीली का शाखसाना है, जो कि एक आलमी मसला है। बहरहाल चिलई कलान की शान बर्फबारी है और यही बर्फ आने वाले दिनों में हमारे खेत खलियान को सैराब करती है। बर्फबारी सयाहों के लिए भी एक कशिश है और कश्मीर वादी मौसमी सरमा में भी सयाहों के लिए एक पसंदीदा मुकाम हुआ करती है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मौसमी सरमा में आमतौर पर आग की वारदातें और दम घुटने से अमवात होने के वाक़ात भी पेश आते हैं। लिहाजा हम सब के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। शबीर उज़्ज़मा, शोबे खबर, श्रीनगर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।